معاملہ اپنی معاشرے کا، سوسائٹی کا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام میں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنی شادیوں کے بارے میں۔ کشمیر پروونس کی بات کریں، جموں پروونس کی بات کریں، پھر کٹنگ دا بارڈر جب آپ ریلیجن لائنز پر بات کرتے ہیں، کشمیر کے اندر مسلمانوں کی بات کریں، ہندوؤں کی بات کریں، جموں آتے تھے سکھ برادری سے، کرسچن برادری سے آپ بات کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو مسئلہ پتہ لگتا ہے یہ جو کانٹریکٹ آف میرج ہے یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگا ہو رہا ہے، ہاتھ سے باہر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عمر کی حد جو ہوتی ہے جہاں پر شادیاں ہونی چاہیے سائنس کے حساب سے اس حد کو پار کیا گیا، اور اگر اس کے بعد بھی شادیاں ہوئی تو پھر ہماری انفرٹیلیٹی ریٹ بڑھ جاتی ہے، بچے پیدا نہ ہونے والی شکایتیں ہوتی ہیں، پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر خاندانی پھوٹ ہوتا ہے، ڈائیورس تک بھی معاملات جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ اور بنیادی وجہ دیکھی گئی کہ شادیاں وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ اب یہ شادی کم، فیسٹیول زیادہ دکھ رہا ہے، اب پری اور پوسٹ ویڈنگز چل رہی ہیں، شادی کا جو بنیادی کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے یہ ہے موٹا موٹی بات۔ 50,000 کے زیادہ کشمیر صوبے کے اندر، 30 سے 40,000 صوبے کے اندر ایسی بیٹیاں ہماری ہیں جو عمر کی اس دہلیز پر آ چکی ہیں جہاں پر ان کے ہاتھوں پر مہندی لگنی چاہیے تھی، نہیں لگ پا رہی ہے، کیونکہ ان کے گھروں کی مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ وہ شادیوں کے لیے کھڑی ہو سکے، ان کے گھر والے کھڑے ہو سکے اور ان کی شادی کر سکے۔ ایک طرف سے یہ ہے، دوسری طرف سے مس میچ بھی ہو رہا ہے، یعنی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں سے جو ان کا دلہا ہے یا ان کی دلہن ہے وہ اس طریقے سے میچ نہیں ہو پا رہی ہے، اور یہ جو مینٹل ٹراما ہے اس سے اس وقت پوری سوسائٹی جو وہ چل رہی ہے۔ آج معروف عالم دین ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، محتاج تعارف بالکل نہیں ہے، مولانا عبدالاحد مخدومی صاحب میرے ساتھ نارتھ سے جوائن کر چکے ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو 50,000 کا فگر صرف کشمیر کے اندر، 30 سے 40,000 کا فگر جموں کے اندر، اور انٹائر جموں کشمیر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شادی کی دہلیز پر آ چکے ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے۔ کل ملا کر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جس شادی کو لے کر، جس نکاح کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح ارشادات تھے کہ آسان بنایا جائے، آسان بنایا جائے، آسان بنایا جائے، اس کے برعکس ہم کر رہے ہیں اور دعویٰ بھی بہت زیادہ دے رہے ہیں کہ ہم آسان ہیں، ہم سے سوسائٹی ہے اور ہم سوسائٹی کے محافظ بھی ہیں۔ کس طریقے سے یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت سوسائٹی کے اندر پنپ رہے ہیں؟ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو روزمرہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہیں اور سنت کی پیروی کریں، چونکہ بک آپ سنا ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، سنت کی پیروی کا بیان ہے کہ whatever I have commanded you do it and whatever I have forbidden you refrain from it۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا these are the choice words of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ دینی ماحول پیدا کرے اپنے گھروں میں، کیونکہ یہ سب جو اس کا معاملہ ہے یہ پیرنٹس پہ آ رہا ہے۔ پیرنٹس کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے، لہٰذا اسے اپنی ذمہ داری کے متعلق کل پوچھ ہوگی، قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ ہم وہ ذمہ داری خوش اسلوبی سے وہ سراہنا نہیں دیتے ہیں، ہم خوش اسلوبی سے وہ پیش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو جوان ہیں، جوان بچیاں ہیں، جوان مرد ہیں، جبکہ قرآن نے فرمایا ہے اور اللہ کا ارشاد ہے ان سورہ نور میں ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، ہمیں چاہیے کہ ہم مرد اور عورت کا نکاح کریں، وہ بھی ایڈلٹ پیریڈ میں، یعنی جب ٹین ایج ہوتی ہے۔ میڈیکلی رپورٹ سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ لگ بھگ 18 ایج جب ہوگی، 18 to 26 اس درمیان نکاح ہونا چاہیے۔ جو یہ لیٹ میرج ہوتا ہے یہ ایک وبال ہے جس سے سیکچول فرسٹریشن انسان میں آتی ہے، اور جوان بچیاں، وہ جوان لڑکے، جوان یوتھ وہ ڈرگ کی طرف ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں، اور ڈرگ ابیوز زیادہ ہو رہا ہے اس وقت کشمیر میں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم لیٹ میرج کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں، یوتھ ہیں، پہلے یہ کوئی نوکری حاصل کرے، اس کے بعد یا تعلیم حاصل کرے، MBBS کرے، MSc کرے، اس دوران بھی یہ سیکچول فرسٹریشن میں آ رہے ہیں، اور وجہ صرف یہی ہے جو لیٹ میرج ہو رہا ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن اربع
अर्बउ सुनन मिनल मुरसली, 4 चीजें पैगंबरों की सुन्नत है जो प्रैक्टिस ऑफ अल्लाह's मैसेंजर्स, 4 आर प्रैक्टिस ऑफ अल्लाह's मैसेंजर्स, 4 चीजें उसमें है अल हया मॉडेस्टी एंड अल हया व तुअतर और परफ्यूम व सिवाक मिसवाक और चौथा है व निकाह यानी मैरिज। हमें चाहिए कि हम एडोलसेंस पीरियड में जब टीन एज होती है अपनी बच्चों की शादियां करें, अपने बच्चों की शादियां करें और उससे ये जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है ये दूर हो जाए। लिहाजा समाज में जो सबसे बड़ा सोशल इशू है इस वक्त, और इस समाज में हमारी बेटियां जो गैर शादीशुदा है वो बदकारी में मुब्तला हो रही है, हमारे जवान ड्रग की तरफ हो रहे हैं और शराब नोशी का आम मुजाहरा हो रहा है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानल्लाहुल खबर, शराब पे लानत हो, साकीहा पिलाने वाले पे भी लानत हो, वो बाईहा बेचने वाले पे भी लानत हो। लेकिन हम आज इस मुब्तला हो गए इस गुनाह में, वजह सिर्फ यही है। मखदूमी साहब आपसे जानना चाहेंगे अब इस पे किस तरह से निकला जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कोई लाए अमल होगा कि जिस तरह से आजकल ये हो रहा है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, शादी ना होना और उसकी वजह से जो नौजवान लड़के या लड़कियां हैं जहनी तनाव के शिकार हो चुके हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि वो फिर ड्रग्स का शिकार भी होते। अब जरा समाज के अंदर क्या कुछ इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए ताकि इस पर कंट्रोल किया जाए, इसको खत्म किया जाए? हम जो शादी में रसूमात बद जो इख्तियार कर रहे हैं उन रसूमातों को हमें खत्म करना चाहिए। हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए, जबकि कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूल उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए एक्सीलेंट मॉडल एट अर्थ नमूना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, जिसे हम कहते हैं ज़ाबिते हयात और द वे ऑफ सॉल्वेशन, द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, द कंप्लीट कोड कंडक्ट ऑफ लाइफ। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जब एक जवानों की जमात उन जवानों की जमात से गुजर गई और फरमाया कि ए जवानों या माशिरा शबाब, आप निकाह करो, उससे आपकी नफ्सी ख्वाहिशें खत्म हो जाएगी और कंट्रोल में रहेगी। इस बार जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हमें चाहिए कि समाज में हमें वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिनमें हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर करना चाहिए। ठीक है अब्दुल मखदूमी साहब, ये बात सही है कि हमने सीरत को फॉलो करना है, कुरान और हदीस के तहत चलना है, लेकिन जब मैं अपने निकाहों पर देखता हूँ, मजलिस निकाह को देखता हूँ, तो वहाँ पर अक्सर हमारे उलमाए दीन बड़े अदब और एहतराम के साथ बड़े खामोश मुझे नज़र आ रहे हैं। और कंटिन्यूसली मैंने 1-2 महीनों में देखा, कुछ मुशाहिदे मेरी नज़र में भी आए जहाँ पर बहुत कम इसकी और तवज्जो दी गई कि भाई साहब आपने जो ये शादी की है इसमें इतना आपने तामझाम जो लगाया है, इससे आसपास के लोगों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, कोई बात नहीं हुई। तो क्या जो मेन की निकाह की इस इमाम साहब के पास है, खतीब साहब के पास है, निकाह खान साहब के पास है, उसको आज अपने एहसास को पूरा करते हुए बाहर आना पड़ेगा इस लाइन से, और नारनी पड़ेगी तब कि भाई साहब अगर आपने ये किया तो हम आपके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, जाइए आपने जहां भी जाना है, होगी नहीं शादी जब निकाह खान नहीं आएगा। हाँ, की जिम्मेदारी है, क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अंबिया के वारिस है। इन्हें चाहिए कि जिस शादी में ऐसा हो, जिस बया में ऐसा हो कि रसूमी बदात जो हो रहे हैं, नाच गानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं लोग और मुख्तलिफ खुराफात पे पैसा खर्च कर रहे हैं, एक अमीर तरीन आदमी बहुत सारे रुपये पैसा खर्च कर रहा है, उसे चाहिए कि अल्लाह के दरबार में खुशनुदी हासिल करने के लिए उन रुपयों से जो हम मजीद खर्च करते हैं शादी में, शादी ब्याह में जो ये नाच गाना होता है उस पे खर्च करते हैं, लाइटिंग सिस्टम होता है उस पे खर्च करते हैं, या जो फायर क्रैकर्स होते हैं उस पे खर्च करते हैं, उन पैसों से 4 बच्चों की, यतीम बच्चों की शादी हो सकती है, 4 बच्चों की शादी हो सकती है, एक शादी में ऐसा खर्च करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि उलमा इस पर इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि उलमा इस पर गौर फिक्र करेंगे और सही तरीके से इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे लोगों में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को
उजागर करने की कोशिश अच्छा, करेंगे। ये तो बात हुई हमारे उलमाज की, लेकिन अब दूसरा सवाल ये भी है कि जो मेरी मकामी कमेटियां हैं, मोहल्ले की कमेटियां हैं, मस्जिद की कमेटियां हैं, बैतुल माल है, उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने ग्राउंड पर देखे कि भाई साहब मेरी मस्जिद के साथ अगर 100 घर जुड़े हैं तो इन 100 घरों में कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां शादी के तैयार हो चुकी है लेकिन हो नहीं पा रही है, क्या वजह है, जाकर देखें और उन तक वो रसाई पहुंचाए, वो चीज़ पहुंचाए जो उन्हें ज़रूरत हो, बजाय शोर शराबे के, बिना किसी फोटो सेशन के। क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं है कि अब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर इसकी ओर तवज्जो दे, वरना हमारा मुस्तकबिल तारीख है ही। हाँ, इनको बहुत जरूरत है कि जो हमारी अवामी कमेटी है, इत्तेहाद कमेटियां हैं और अवामी बहबूद कमेटियां हैं, क्योंकि डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बेहतरीन इशारा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बिया। तो उन्हें चाहिए कि अपने आपस पड़ोस में नजर दे कि कोई ऐसा घराना है कि जहां शादी नहीं हो रही है, यतीम बच्चियां हैं, उनकी कफालत करे और उन पे ये पैसा खर्च करे। जो हमें यहाँ हमें कमेटियां है, बैतुल माल है, हम वो बैतुल माल भी अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। वो हमें चाहिए कि हम पड़ोस में नजर दे कि कोई ऐसा हो कि जो शादी के लायक है लेकिन उस पे पैसा नहीं है और उसके घर में पैसा मौजूद नहीं है। मखदूमी साहब, दोनों चीजें आप मान रहे हैं, अब इस चीज को सही करने के लिए किसको सामने आना है? मैंने सामने आना है, मस्जिद के जिम्मेदार को सामने आना है, या मजहबी उन बड़ी इदारों ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आना पड़ेगा कि भाई साहब ये हमने डेडलाइन दे दी है, इसको आपने इंप्लीमेंट करना है, तो हम आपके साथ है, नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, तहरीके काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो खुश असलूबी से, ताकि तोशा आखिरत बन जाए, खुश असलूबी से ये काम दे, ये फरीजा अंजाम दे, क्योंकि उन पर फर्ज बनता है, ये हुक्म बनता है कि आप पड़ोस में देखिए। मुझे वो हदीस याद आ रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोस में नजर दे रहे थे, कोई यतीम हो, कोई गरीब हो, उस बच्चे की कफालत भी की जो बच्चा यतीम था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने घर लाया और हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया कि इसे नहलाओ, इसे दोहलाओ, ताकि तोशा आखिरत बन जाए। हमें चाहिए कि यतीम बच्चों की शादी, आज मुझे रोना आ रहा है कि हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी शादियों में और बिदात खर्च कर रहे हैं। हमें चाहिए कि वो पैसा बचा के रखे ताकि तोशा आखिरत बन जाए। इसलिए मजहबी रहनुमा जितने भी हैं, उलमा हैं, उन्हें इन पर काम करना चाहिए। और जो कमेटियां हैं, मस्जिद कमेटी, अवकाफ है, हमारे यहाँ मसाजिद में अवकाफ होते हैं, अवकाफ कमेटी होती है, उन्हें चाहिए अपने पड़ोस में नजर दे कि कोई ऐसा हो। लिहाजा हमें चाहिए कि इस पर पैसा करे, बैतुल माल इस पर खर्च करे। वो बेहतरीन तरीका है और इंशाअल्लाह वो हमें तोशा आखिरत में मिलेगा। और दोज आर सक्सेसफुल मैनर्स इन जजमेंट, कयामत के दिन यही लोग कामयाब होंगे। हमें चाहिए कि अपने पड़ोस में नजर दे, अपने समाज में नजर दे, और जो यहाँ इस वक्त सोशल हमें ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि ये माशरे में तब्दीली आए, इस्लाही माशरा हो जाए। बहुत शुक्रिया मखदूमी साहब आज इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा बनने के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से जहां मखदूमी साहब ने भी, मौलाना साहब ने भी कहा है कि किस तरह से हमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होंगे और साथ ही साथ समाज के हर फर्द को ये जिम्मेदारी है, चाहे उलमाओं की बात करेंगे या समाज के ज़ीज़त शहरियों की बात करेंगे, कि आसपास पड़ोस में देखें कि कौन किसकी ज़रूरत है, क्या इन लोगों की ज़रूरत है, कहीं हम फजूल खर्च जो कर रहे हैं शादियों के अंदर कि उस फजूल खर्ची को रोके और उन पर वो खर्च करे जो शादी के करीब उनकी जो उम्र है वो पार कर चुके हैं, और उसके साथ साथ ही उनमें वो खर्च करे ताकि वो भी शादी कर सके।